Hi. This is Adnan. Welcome back to all of you in my channel ICSC Island. Today we are going to understand the concept of linear inequation. This is the chapter 4 of ICSC class 10. Okay? This is a very easy and important chapter. Okay? इससे आप free का marks उठा सकते हो. Obviously. Okay. If you want to understand the meaning of linear, then you have to take the help of polynomial. Okay. I'm going to introduce some polynomials here. 2x plus 6. Okay, take another one. 2x square plus 6x plus 3. Okay, take one more. 3x cube plus 8x plus 4. Okay, there are the three polynomials. Okay, in the first one, if you see that, what is the highest power? Highest power किसका highest power? पहले तो ये पूछो ना. You have to check the highest power of variable. ठीक है, here the variable is x and the highest power of variable here is 1. Okay, in the second polynomial, which one is variable? Here there are the two variables are present. Okay, but if you check the power of the variable, here the variable's power is 1 and here is the variable power is 2. So in the second polynomial, what is the highest power? Highest power here is 2. Okay, in the third one, if you see that clearly, so here is the highest power is 3. When the highest power is 1, so we can say that in the place of highest power, we can use a term degree. When the degree is 1 and when the degree is 2 and when the degree is 3. When the degree is 1, we can say that it is a लीनियर. ओके, इट इज अ लीनियर. लीनियर का मतलब ये होता है डिग्री 1 या हाईएस्ट पावर 1. ओके, व्हेन द डिग्री इज 2, वी यूज अ टर्म क्वाड्रेटिक, जो कि आपका नेक्स्ट चैप्टर आता है क्वाड्रेटिक. ओके, व्हेन द डिग्री इज 3, देन वी यूज अ टर्म क्यूबिक. ओके, सो व्हेनेवर the highest power of variable is 1, then we can use a term known as linear. In this chapter we are हम लोगों को क्या किससे डील करना है? We have to deal only with linear polynomial. Okay, अच्छा, there is an also a interesting बात. क्या है वो interesting बात? कि take an linear polynomial 2x plus 6. Okay, and put equals to sign and also put 0. So with the help of equals to sign, these is divided into two sides. This one called LHS and this one known as RHS. Okay, if you put equals to sign and 0, then इस पूरे को हम लोग क्या बोल सकते हैं? इस पूरे को हम लोग बुला सकते हैं क्या? इक्वेशन. अच्छा, इसका पहले का नाम क्या था? इसका क्या नाम था पहले? देखो तो, इसको हम लोग लीनियर बोले थे. ओके, तो पहले हम लोग इसको बोलेंगे लीनियर, LINER, लीनियर. But after introducing equals to and 0, then we use term equation. समझ में आया? ओके, जब LHS और RHS इक्वल्स होते हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे? ये क्या है? लीनियर इक्वेशन. या तो ऐसे भी बोल सकते हैं, जब आप इक्वल्स टू का साइन लगाते हो और इक्वल्स टू 0 लिख देते हो, तो दोनों साइड बराबर हो जाते हैं. जब दोनों साइड बराबर हो जाते हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन. ओके, दोनों साइड बराबर हो जाते हैं. ठीक है, चाहे 0 की जगह 3 4 भी लिखा रहा है, उससे मतलब नहीं है. अगर इक्वल्स टू और 0 है, देन दिस विल नोन एज लीनियर इक्वेशन. ओके, अच्छा, अगर इफ यू टेक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 एंड पुट इक्वल्स टू एंड ऑल्सो 0, then it will known as not linear. Here the polynomial is quadratic, then we can call it as quadratic what? Quadratic equation, obviously. ठीक है, अच्छा, आई होप 5th चैप्टर आपका यही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो उसमें हम लोग को देखना है क्वाड्रेटिक को कैसे डील करते हैं. ओके, अच्छा, तुम खुद बताओ. नाउ यू कैन टेल मी, इफ द डिग्री इज 3 and if you put equals to sign and also 0, then what it will called as linear, sorry, not linear, not quadratic, it is known as cubic equations. But आज हम लोग को इक्वल्स टू के बारे में बात नहीं करना है. इक्वल्स टू के बारे में बात आप लोग ने ऑल्सो कर चुका अपने प्रीवियस क्लासेस में, 8 में, 7 में, 9th में. ओके,
आपने इजीली बहुत सारे क्वेश्चंस में यार निकाला होगा, वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द इक्वेशन इज लाइक दैट 2x + 6 = 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, है ना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपने डील किया। बट इन दिस चैप्टर वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट इक्वल्स टू, ठीक है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इनइक्वेशन। तो इनइक्वेशन एक्चुअली में है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल इनइक्वेशन भी समझने के लिए आपको एक और चीज में ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ध्यान रखना पड़ेगा? जैसे कि एज यू नो व्हेन वी पुट इक्वल्स and equals to sign, then what we can say, LHS equals to RHS. It means that LHS and RHS are equal. But if we want to say that LHS is not equals to RHS, LHS is not equals to RHS, LHS is greater than RHS, LHS is smaller than RHS, then what we can use? We use the different symbols. Okay. Which symbol? Okay. Just like this one, and this one. You all use all this symbol in your previous classes in the ancient period. अगर बोले ancient period आप लोगों को क्या हो गया? upper nursery 1 2 on that time you use this symbols. आप शो करते थे 3 is smaller than 4, तो आप क्या करते थे? ये साइन पुट करते थे। जब आपको यूज करना होता था 4 और 3 में कौन बड़ा है, तो आप ये करते थे, है ना। सिमिलरली आज भी हम लोग को उसी कॉन्सेप्ट को थोड़े और डील में थोड़े से और डील करना है। डील करना मतलब लेन देन नहीं करना, उसको और थोड़ा सा समझना है। ओके, सो अगर कोई तुमसे पूछता है कि इनइक्वेशंस का मतलब क्या होता है, तो तुम क्या बोलोगे? इनइक्वेशन इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ठीक है, विच शोज दैट वन साइड इज नॉट इक्वल्स टू अनदर वन। समझ में आया? एक मिनट मैं लिख देता हूं यार, कहीं भूल जाओ तुम लोग, ठीक है। इनइक्वेशन इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट which shows LHS is not equal to RHS, obviously, ठीक है। अच्छा, लीनियर का मैंने भी बता दिया था। लीनियर का मतलब क्या होता है? डिग्री 1। ओके, अच्छा, अब कुछ बच्चों को खुद नहीं होगा, भाई इसका रियल लाइफ एग्जांपल बताइए, रियल लाइफ एग्जांपल बताइए। ऑब्वियसली बहुत सारे हैं, आप समझना तो चाहो। पहले आपने कई बार देखा होगा रोड में एक स्पीड लिमिट होता है 60 का, 40 का, 30 का, तो क्या करते हैं आप वहां पे? आप 60 से क्रॉस कर जाओगे स्पीड? नहीं, अगर क्रॉस करोगे तो केस हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको मैथमेटिक्स के हेल्प से कैसे दिखाएं? देखो मैं बताता हूं। स्पीड लिमिट कितना है दोस्त? 60 का। ये तो जरूरी नहीं है कि हर लोग 60 पे ही चलाए, कोई तो 60 से कम भी हो सकता है ना, और जो ज्यादा हो तो केस खा जाएगा, उसको छोड़ो। 60 से कम भी हो सकता है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करना चाहते हैं? यहाँ पे 60 से कम चलाना चाहते हैं। अगर मैं यहाँ पे इक्वल्स टू लिख देता हूं तो इसका मतलब क्या होता है? स्पीड इज इक्वल्स टू 60, मतलब हर गाड़ी 60 में ही चलेगा। हमको 60 से कम या तो 60 पे चलाना है। तो यहाँ पे हम लोग को इनइक्वेशन स्टेटमेंट का यूज करना पड़ेगा। तो इनइक्वेशन का स्टेटमेंट्स कौन सा वाला होता है? कौन से वाले इसके सिंबल्स होते हैं? जो मैंने शुरुआत में बताया था, ये वाला लेस देन, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन। ये लेस देन और इक्वल्स टू, ये होता है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। तो तुम खुद बताओ स्पीड क्या होना चाहिए? 60 या तो 60 से कम, यानी कि लेस देन और इक्वल्स टू। तो लेस देन और इक्वल्स टू कौन सा है? ये वाला है। तो यानी कि ये यूज कर लेंगे हम लोग। समझ में आया? अच्छा, और भी कई सारे डेली लाइफ एग्जांपल्स हैं, जैसे आप ले सकते हो। अगर आप देखोगे एक रेंजर साइकिल होता है, जैसे हीरो का कोई भी साइकिल ले लो, तो उसके पीछे वाले, या एटलस का साइकिल ले लो, उसमें लिखा रहता है, उसके पीछे वाले साइकिल का जो सीट होता है, ये वाला सीट, उसमें क्या होता है? लिखा रहता है 60 kg। तो वो 60 kg का मतलब क्या होता है? इट मीन्स दैट द लिमिट यानी कि उस सीट का लिमिट क्या है, कितने kg का लोग उसमें बैठ सकता है? लिमिट है 60। अगर आप 60 से ज्यादा के वेट वाले के बैठाओगे तो हो सकता है वो जो सीट हो वो टूट जाएगा। तो यहाँ पे इक्वल्स टू का यूज नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको क्या यूज करना पड़ेगा? इनइक्वेशन स्टेटमेंट्स का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इक्वल्स टू की जगह क्या यूज करेंगे? इक्वल्स टू की जगह हम लोग बोलेंगे जो वेट होगा वो वेट 60 से कम होना चाहिए, या तो 60 या तो 60 से कम। तो यहाँ पे फिर हम लोग ये लेस देन और इक्वल्स टू का साइन यूज करेंगे। समझ में आया? ठीक है। अच्छा, और एग्जाम्पल्स है मेरे मन में, जैसे कि आपने देखा होगा कि हम लोग के जो इंडिया में वोट देने का एज क्या है? 18 और 18 से ज्यादा, 18 और 18 से ज्यादा, यानी कि जो एज होगा वो 18 या 18 से बड़ों के लिए होगा। तो बड़ों के लिए यहाँ पे एज क्या होना चाहिए?
18 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि ये जो एज है वो 18 से बड़ा होना चाहिए या तो 18 होना चाहिए। तो इस बार इसके तरफ मुंह खुलेगा, यानी कि ग्रेटर देन का साइन किसके तरफ, ग्रेटर कौन होगा, एज। समझ में आया। शायद किसी किसी को कंफ्यूजन होगा कि किसका नाम क्या होता है, इसको बोलते हैं लेस देन। ओके, इसको क्या बोलेंगे, लेस देन पढ़ेंगे इसको। अच्छा, इसको क्या पढ़ेंगे, ग्रेटर देन, GREATER, ग्रेटर देन। इसको क्या पढ़ेंगे, लेस देन और इक्वल्स टू। इसको क्या पढ़ेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। अपने कॉपी में मेंशन कर लेना, ठीक है। तो एक्चुअली में हम लोग को अपने डेली लाइफ में इन इक्वेशंस का भी यूज करना पड़ता है, इक्वेशंस का भी यूज करना पड़ता है। लेकिन आपको अब बेसिक सा डिफरेंस समझ में आ गया। व्हेन यू पुट इक्वल साइंस एंड पुट जीरो आल्सो, देन इट बिकम्स लीनियर इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन या तो क्यूबिक इक्वेशन। बट इफ यू पुट दीज सिंबल, कौन सा सिंबल, ये वाले सिंबल्स अगर आप यूज करते हो, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, देन इट विल नोन एज लीनियर इनइक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इनइक्वेशंस, क्यूबिक इनइक्वेशंस। तो इसमें खास बात ये है कि हम लोग को क्यूबिक और क्वाड्रेटिक इनइक्वेशंस के बारे में पढ़ना ही नहीं है, हम लोग को जस्ट पढ़ना है लीनियर इनइक्वेशंस। आई होप समझ में आया होगा। ओके, देयर इज ऑल्सो सम इंपॉर्टेंट सिंबल्स जिसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये सिंबल्स अगर आप ध्यान में रखोगे तभी आप अपनी क्वेश्चंस को इजीली तरीका से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो वो सिंबल्स क्या क्या है, अच्छा, लेट मी राइट फॉर यू। लाइक if you see that capital N, then it means that it is a natural number. ओके, आई होप आप लोग को पता होगा, फिर भी मैं रिपीट करता हूँ। ओके, कैपिटल W होल नंबर, ओके, अच्छा। देन नेचुरल नंबर, होल नंबर, फिर क्या पढ़ते हैं आप, इंटीजर। ऑब्वियसली या तो I लिखा रहेगा इसके लिए या तो Z। I और Z रिप्रेजेंट्स दैट इंटीजर, ओके। अच्छा, इफ I प्लस, इट मीन्स दैट पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। इफ I माइनस, देन इट रिप्रेजेंट नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, ओके। अच्छा, और क्या, अच्छा, Q समटाइम्स या मोस्ट ऑफ द टाइम भी बोल सकते हो आप, Q रिप्रेजेंट्स रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। जब Q आपका रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आप अगर Q के ऊपर छोटा सा C लिख दोगे, इट मींस दैट इट इज एन इरैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, ओके। अच्छा, लास्ट में क्या पढ़ा आप लोगों ने, रियल नंबर। तो रियल नंबर के लिए क्या होता है, कैपिटल R। सो दीज आर द बेसिक सिंबल्स जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अच्छा, कुछ सिंबल्स है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक और सिंबल्स होता है जैसे कि ये, इसको पढ़ते हैं हम लोग बिलोंग्स टू। क्या पढ़ेंगे, बिलोंग्स टू। जैसे कि अगर मैं बोलना चाहूँ दिस पेन बिलोंग्स टू मी, तो इसको मैथ्स में कैसे लिखेंगे, पेन बिलोंग्स मी। वो जो उल्टा ही है ये क्या बताता है, बिलोंग्स टू। तो हम लोग बोल सकते हैं दिस पेन बिलोंग्स टू मी। समझ में आया। अच्छा, इस क्वेश्चन मतलब इस चैप्टर में आपको ना आंसर जो लिखना होगा वो बोलेगा राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन सॉल्यूशन सेट, ठीक है। तो सॉल्यूशन कुछ भी हो वो बात का बात है, लेकिन आपको इसमें नाम क्या आ रहा, सॉल्यूशन सेट। तो सेट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को अगर आप कर्ली ब्रैकेट में लिख दोगे तो वो क्या बन जाता है, सेट। किसी भी चीज को अगर आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख देते हो तो वो क्या बन जाता है, सेट। मान लो मेरा आंसर आया 1, तो इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे हम 1। कभी कभी आंसर 2 3 भी आ सकता है, 2 3 मतलब 2 3 आंसर आ सकता है। मान लो 1 2 3 आया, 1 2 3, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, ब्रैकेट में रख देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन सेट। समझ में आया। तो ये सब कुछ बेसिक से सिंबल्स थे जो बहुत फ्रिक्वेंटली इस चैप्टर में यूज होंगे। अच्छा, एक और मेरे ध्यान में आ रहा है, ये वाला डबल डॉट। या तो डबल डॉट आ जाए या तो ऐसे आ जाए, इसको बोलते हैं सच डैट। क्या पढ़ेंगे इसको, सच डैट। और ये सब आपने आई होप क्लास 8 में पढ़ा भी होगा सेट्स चैप्टर में। ओके, नाउ अब हो गया इस चैप्टर का सारा कॉन्सेप्ट। समझ में आया। अब इक्का दुक्का जो कॉन्सेप्ट बचेगा हम लोग को क्वेश्चंस के साथ देखते जाएंगे। ओके ओके, चलो अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। और इसका क्वेश्चन बहुत आसान होता है, बहुत टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट एंड सॉल्व सम क्वेश्चंस। ओके, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले गिवन में क्या लिखा है, गिवन x बिलोंग्स टू, ये एक सेट लिखा है, एंड 9 इज ग्रेटर देन 1 माइनस 2। अच्छा, लिख लेते हैं हम लोग। तो क्या लिखा हुआ है, x बिलोंग्स टू कर्ली ब्रैकेट -3 -4
-5 -6, ओके ठीक है। और एक इक्वेशन लिखा है, इन इक्वेशन लिखा है, नॉट इक्वेशन, n इज लेस देन इक्वल्स टू 1 -2x, ठीक है। फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, ऑल्सो रिप्रेजेंट इट्स सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो आप ये देखो, इसको पहले इसका सॉल्यूशन सेट बनाओ। तो सॉल्यूशन सेट किसको बोलते हैं कि उस करली ब्रैकेट के अंदर कुछ नंबर्स लिखा होगा, ठीक है ओके। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे 2x क्या है माइनस में, जैसे इक्वेशन सॉल्व करते थे सिमिलरली उसको भी ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो -2x है तो इसको इधर लेके आएंगे इक्वल्स टू के इधर, सॉरी लेस देन के इक्वल्स टू इधर, मतलब RHS से LHS लेके आएंगे तो क्या होगा, इसका साइन पलट जाएगा, माइनस से किसमें हो जाएगा प्लस, तो क्या हो गया 2x, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या था, +9 भी था तो +9 लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ओके। यहाँ पे 1 बच गया। अब देखो यहाँ पे 9 है, इसको कहाँ ले जाएंगे, RHS में ले जाएंगे, क्योंकि जब भी किसी वेरिएबल का वैल्यू निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल को अकेला रखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे इसके साथ कौन है 9, तो 9 को उधर भेज देंगे, तो 9 देखो अभी कुछ नहीं है तो यहाँ पे प्लस है, RHS के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2x लेस देन 1 -9, तो क्या होगा बताओ, 1 -9 क्या होगा, वेरी गुड, -8 होगा। अब देखो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, अब जैसे ही इसके नीचे आएगा, ये लेस देन के इधर आ जाएगा 8 के नीचे, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर आगे क्या हो गया, डिवाइड में, ओके। तो 2 1 2 और 2 4 8, यानी कि x का जो मेरा आंसर होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए किससे, -4 से। समझ में आया, यानी कि x किससे छोटा है, -4 से, या तो इसको कैसे पढ़ेंगे, x इज लेस देन -4। लेकिन शुरुआत में तुम देखो यहाँ पर एक पहले ही से सेट बना दिया था, बोला था x ये हो सकता है मेरा, ठीक है। तो इसके अंदर से बताओ x क्या आया मेरा, x आया मेरा -4 से छोटा। तो देखो यहाँ पे इक्वल्स टू भी एक लाइन खींचा हुआ था, इसका मतलब इक्वल्स टू होता मतलब -4 और -4 से छोटा, तो ये तीनों वैल्यू होगा, समझ में आया। -4 से बड़ा कौन होता है, -3, तो इसीलिए -3 को आंसर में क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि -3 इज ग्रेटर देन -4, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, कर्ली ब्रैकेट -4 -5 एंड -6, समझ में आया। अच्छा अब क्या बोला है, सेट ऑन रिप्रेजेंट इट्स सॉल्यूशन सेट ऑन अ नंबर लाइन, तो सॉल्यूशन सेट बन गया। अब नंबर लाइन में हमको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार देखो नंबर लाइन क्या है, मान ले यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या होगा, -1 -2 -3 -4 -5 एंड यहाँ पे -6। तो हमको दिखाना है -4 -5 -6, तो -4 कहाँ है देखो, तो नंबर लाइन में -4 यहाँ पे है, तो यहाँ पे सर्कल कर दिए, -5 पे सर्कल कर दिए एंड -6 पे सर्कल कर दिए। तो ये जो 3 सर्कल है ये मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है x को, जो मेरा इस क्वेश्चन में हो गया, समझ में आया। देखो इसको इस क्वेश्चन बहुत आसानी से बनते हैं। सबसे पहले हमको एक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे इक्वल्स टू की जगह क्या होगा, इक्वल्स टू की जगह कोई इन इक्वेशन का स्टेटमेंट होगा। अब तुमको देखना है ये क्या है, लेस देन है या ग्रेटर देन है, तो लेस देन है, यानी कि x जो होगा -4 से छोटा होगा। तो -4 से छोटा कौन है, -4 से छोटा -5 -6 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इक्वल्स टू भी लगा हो, यानी कि -4 को भी इंक्लूड करेंगे आंसर में, तो -4 -5 -6, क्लियर। तो आई होप पहला आंसर समझ में आया होगा, पहला क्वेश्चन का आंसर समझ में आया, ओके। नाउ ट्राई टू सॉल्व नेक्स्ट वन। देखो इधर भी क्या देखना आपको, सबसे पहले इन इक्वेशंस पे ध्यान जाना चाहिए। तो इन इक्वेशन क्या लिखा हुआ है देखो, 3 - 2x, ओके, ग्रेटर देन x -12, ठीक है। अच्छा मेरा x कहाँ से बिलोंग्स करता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब जो मेरा x है वो कहाँ से बिलोंग करता है, यहाँ पे साइड में भी लिख देते हैं x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। अच्छा अब इसको ट्राई करते हैं सॉल्व करने के लिए। देखो 3 - 2x इज ग्रेटर देन x -12, तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा x वाला को एक तरफ रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे x क्या है, -2x है, ठीक है, यहाँ पे इसको रहने दो, तो इसको -2x यहाँ रहने दिए, ओके। अब यहाँ पर भी देखो x है ना, तो इधर क्या है, प्लस में है, तो इक्वल्स टू को क्रॉस करके इधर आएगा, तो सॉरी इक्वल्स टू नहीं है, यहाँ पे ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन को क्रॉस करके इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -x, समझ में आया। अब देखो ये 3 है जो इधर प्लस में है, ये ग्रेटर देन को उधर क्रॉस करके जाएगा तो क्या होगा, माइनस में जाएगा, जैसे इक्वल्स टू में होता था। तो -12 -3, तो देखो माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस कराएगा तो यहाँ पे क्या हो गया 3x, ठीक है। ग्रेटर देन माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस कराएगा तो ये हो गया 15। अच्छा अब एक खास बात तुमको सिखाना है,
जब भी कभी माइनस वाले नंबर्स को अगर हम लेस देन और इक्वल्स टू के क्या करेंगे, मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, तो क्या होता है, ये जो साइन होता है इनइक्वलिटी का, ये चेंज हो जाता है। समझ में आया? ये जो -3 है, अभी देखो -3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो उधर ले जाके क्या करेंगे, उससे डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू -15/-3। तो देखो -3 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, समझ में आया? तो क्या होगा, इनइक्वलिटी का साइन पलट जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ इधर देखो, ये माइनस से माइनस, ये माइनस से ये माइनस, खत्म, 3 1 3, 3 5 15, यानी कि x जो होगा मेरा, वो लेस देन और इक्वल्स टू किसके होगा, 5 के होगा। समझ में आया? ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? बस इसमें याद रखने वाला क्या कॉन्सेप्ट था, कि माइनस वाले नंबर से कभी भी किसी को डिवाइड करेंगे इन इक्वेशन में, तो क्या होगा, क्या होगा, इनइक्वलिटी का साइन पलट जाएगा। समझ में आया? तो बोलो, समझ में आया भाई? ओके, नाउ इसका मतलब क्या हुआ, मेरा सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा बताओ हमको। 5 से छोटा, 5 से छोटा कहाँ तक जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, ये हमको बता रहा है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर शुरुआत कहाँ से होता है, 1 से, तो यानी कि हम लोग 1 से शुरू करेंगे, 1 2 3 4, कहाँ पे रुकना है, 5 पे रुकना है। समझ में आया? अब इसी चीज़ को अगर नंबर लाइन में दिखाना तो क्या करेंगे, देखो आसान है एकदम, नंबर लाइन बनाएंगे, यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे होगा 3, यहाँ पे होगा 4, यहाँ पे होगा 5, डॉट 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 डॉट, ये क्या होगा, इन्फिनिटी तक है। बट हमको कहाँ तक जाना है, हमको क्या चाहिए भाई, इसमें हमको दिखाना है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बस, सो सिंपल, देखा इतना ही सिंपल था। ठीक है, अच्छा, नाउ ट्राई टू सॉल्व दिस वन, पॉज करो, ट्राई करो, समझ में आया, पॉज करो, ट्राई करो, आई होप आपने ट्राई किया होगा। ओके, नाउ अगर आप यहाँ पे गौर करोगे तो सबसे पहले गिवन में पढ़ो क्या लिखा हुआ, इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज द सेट इंटीजर लाइंग बिटवीन -3 to 10, यानी कि एक सेट ऑफ इंटीजर है जो कहाँ से लाई करता है, -3 से 10 तक के बीच में। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज द सेट ऑफ इंटीजर लाइंग बिटवीन -3 to 10, मतलब -3 से 10 के बीच में आने वाले जितने भी इंटीजर्स होंगे उसका क्या है, एक सेट है। तो ले लो, सेट ले लो, -3 और 10 के बीच में, -3 और 10, -3 को नहीं लेना है, -3 और 10 के बीच में कौन से इंटीजर आते हैं, कौन से आते हैं तुम खुद बताओ, ऑब्वियसली -2 -1 0 1 डॉट 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 1 से कहाँ तक चलना है, 10 तक। तो इसके बीच के अंदर के सेट्स का बात कर रहा था, मतलब ये वाले नंबर्स का बात कर रहा था। ठीक है, तो इस वाले नंबर का हम लोग क्या बना दिए, सेट्स। ओके, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ 14x माइनस, क्या लिखा है, सॉरी क्या लिखा है, 14 माइनस 5x ग्रेटर देन 3x माइनस 40, तो लिख लो 14 माइनस 5x, ठीक है, ग्रेटर देन 3x माइनस 40, सॉल्व करो इसको। अच्छा, अब तुम देखोगे यहाँ पे -5x है, यहाँ पे 3x है, तो एक काम करते हैं, -5x को इधर भेजते हैं, तो क्या होगा, 14 ग्रेटर देन 3x माइनस 40 प्लस 5x। अब क्या करो, -40 को इधर ले आओ, RHS LHS में ले आओ, तो क्या हो जाएगा, 14 प्लस 40, क्योंकि क्रॉस करके इधर आएगा तो साइन पलट जाएगा ऑब्वियसली, और 3x प्लस 5x क्या हो जाएगा, 8x। ठीक है, 40 और 14 क्या हो जाएगा, 54, 54 ग्रेटर देन 8x। अच्छा, एक चीज़ बताओ, अभी ये क्या है, पेन है, इसका टिप इधर है, टेल इधर है, अगर हम इसको उल्टा कर देते हैं तो अभी भी देखो, अभी भी क्या हुआ, टिप और टेल अपोजिट ही है, तो अभी भी पेन कहलाएगा। अगर 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 हम इसको ना, अगर इस चीज़ को हम ऐसे लिख दें, 8x को इधर लिख दे और 54 को इधर लिख दे, और ये वाला देखो, ये जो साइन है मेरा ग्रेटर देन का, किसके तरफ है, 54 की तरफ है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 54 की तरफ। तो ऊपर वाला चीज़ और नीचे वाला चीज़ सेम है, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है, मेरा समझाने का मतलब ये था। ठीक है, अभी भी देखो दोनों अपोजिट में ही है ना। अब देखो 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो इधर आगे क्या होगा, डिवाइड में होगा, तो x इज इक्वल्स टू, सॉरी नॉट इक्वल्स टू, x इज लेस देन इक्वल्स टू 54/8। ठीक है, अब बताओ 8 का टेबल में 54 आता है, पता नहीं, तो काम करो ना, 4 से कर ले भाई, 4 से कर ले, तो 4 2 8, ठीक है, 4 1 4, ठीक है, एंड 4 का टेबल में 14 भी नहीं आता है, तो एक काम करते हैं, इधर से पॉइंट आएगा उधर से पॉइंट आएगा, इससे अच्छा एक ही बार में 8 से पॉइंट काटो। ठीक है, 8 1 8, 8 5 40, 8 6 48, 8 6 48, 48 तो 6 बच जाएगा,
8 40, 8 6 48, 7 56 और 8 5 40, कट क्या आएगा 6.75। यानी कि जो मेरा x है, यानी कि जो मेरा x होगा, यानी कि जो मेरा x होगा वो किससे छोटा होगा, 6.75 से। अच्छा, शुरुआत में हमको क्वेश्चन में ही बोला था ना, देयर इज अ रिप्लेसमेंट सेट लाइंग बिटवीन -3 to 10, -3 और 10 के बीच में लाई करने वाला, तो ये हो गया। अब इसके अंदर से आंसर हमको निकालना है। तो तुम बताओ, मेरा x है 6.75 से छोटा, तो 6.75 तो कोई इंटीजर नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर का बात कर रहा था। 6 होता है या तो 7 इंटीजर होता है, लेकिन देखो ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन 6.75, यानी कि 7 नहीं होगा। समझ में आया, 7 से छोटा है ना 6.75, और 6.75 से छोटा इंटीजर कौन होता है, 6, यानी कि 6 से लेके -2 तक। समझ में आया, तो हम क्या बोलेंगे, x बिलोंग्स टू -2, -1, 0, 1, डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जाना है दोस्त, 6 तक जाना है, ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो गया मेरा सॉल्यूशन सेट। अब इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, तो ऑब्वियसली क्या करेंगे, एक नंबर लाइन बना लेंगे। बना लिए नंबर लाइन, यहाँ पे मान ले 0, यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5, 5 हो गया यार, और इसको मान लो यहाँ पे हो गया 6 7, डॉट 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 चलते हुए इन्फिनिटी पहुँच गए, ठीक है। अच्छा, पीछे कहाँ जाना है, -1, -2, -3, डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है। बट हमको आंसर में क्या लिखना पड़ेगा, जो मेरे आंसर के अंदर आता है, क्या आता है, -2 पे हम लोग डॉट बना देंगे ऐसे, -1 पे डॉट बना देंगे, 0 पे बना देंगे, 1 पे बना देंगे, 2 पे बना देंगे, 3 पे बना देंगे, 4 पे बना देंगे, 5 पे बना देंगे, 6 पे बना देंगे। ये डॉट का मतलब क्या होता है, ये मेरे आंसर में है। देखो 6 पे थोड़ा सा खाली रह गया ना, खाली नहीं रखना, खाली का मतलब नहीं होता है, ठीक है। 6 पे डॉट कर देंगे, मतलब 6 मेरा आंसर में है। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। आई होप आपको लास्ट 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन समझ में आया होगा। नाउ ट्राई टू सॉल्व द फोर्थ वन, ओके। सिमिलरली जैसे हम लोग उसमें किए थे वैसे इसमें करेंगे। देखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x विच सेटिस्फाइज द इनइक्वेशंस, ओके। एक इनइक्वेशन क्या है, -2 5/6 लेस देन 1/2 -2x/3, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू 2। और यहाँ पे x मेरा किससे बिलोंग करता है, होल नंबर से बिलोंग करता है। अच्छा, एक इससे पुराने वाले क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते थे, जब सॉल्व करते थे तो सिर्फ एक इनइक्वेशंस होता था। देखो, एक इनइक्वेशन का साइन होता था ना। देखो यहाँ पे सिर्फ एक इनइक्वेशन, मतलब LHS और RHS में सिर्फ एक इनइक्वेशन होता है। लेकिन अभी जो क्वेश्चंस हम लोग डील कर रहे हैं उसमें देखो 2 बार इनइक्वेशन आ रहा है, एक बार यहाँ पे भी आ रहा है और एक बार यहाँ पे भी आ रहा है। तो इस तरह के वाले के क्वेश्चन को कैसे डील करोगे, इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे कर लो, इसको अलग कर लो क्वेश्चन, सॉरी ऐसे नहीं, नॉट इसको, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक को एक मान लो, ठीक है। क्या मतलब, इसको ऐसे लिख लो, -2 5/6, ठीक है, लेस देन 1/2 -2x/3। ये हो गया एक पार्ट। अच्छा, दूसरा पार्ट आप ऐसे बना लो, इसको और इसको रख लो, समझ में आया? देखो यहाँ पे एक लाइन खींच लें, तिरछा हो गया है ये लाइन मेरे नसीब की तरह, स्ट्रेट करते हैं ना। अब देखो यहाँ पे अगर इसको देखेंगे तो 1/2 -2x/3, ठीक है, लेस देन 2, ठीक है। ये देखो कुछ इस तरह से हो गया। बोलोगे भाई टू इनइक्वलिटीज कैसे यूज करेंगे, देखो जैसे कि कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं ना कि, हाँ, जैसे कि एक बच्चा है, मान लो 5 क्लास में पढ़ रहा है, तुम लोग उसको कैसे बोल सकते हैं, वो जो 5 क्लास में होगा वो 1 क्लास से बड़ा है और 10 से छोटा है। तो ये जो 5 क्लास है, तो हम लोग इसको तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, 10 से छोटा है और 1 से बड़ा है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी वही यूज़ किया गया है, उसी तरह से यहाँ पे उसी तरह से शो करने का कोशिश कर रहा है कि ये जो बीच वाला जो टर्म है तुम्हारा 1 -2x, सॉरी तो कलर ही गजीब हो गया पिक्चर। देखो इसका मतलब क्या होगा, जो तुम्हारा बीच वाला जो है ना, ये जो बीच वाला नंबर है, ये बीच वाला जो टर्म है वो इससे तो छोटा बड़ा है लेकिन इससे छोटा है। जैसे यहाँ पे क्या था, 5 1 से तो बड़ा है लेकिन 10 से छोटा है। उसी तरह से इस क्वेश्चन का मतलब बना, समझ में आया, ठीक है ना। अब हम लोग का टाइम है क्वेश्चंस बनाने का, अब ज़्यादा आगे पीछे का बात ना कर करके, सॉरी
क्वेश्चंस डायरेक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के वाले के क्वेश्चंस को कैसे डील करेंगे हम लोग, देखो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग किस तरह से डील करेंगे। पहले तो इसको मिक्स फ्रैक्शन से प्रॉपर में लाएंगे। 6 टू द 12 एंड 12 प्लस 15 कितना होता है बताओ तो 17। 17/6 माइनस का साइन यहाँ पे ऐसे कर देंगे। अब देखो जब भी फ्रैक्शन वाले नंबर होते हैं हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या आ गया 6। तो 2 के टेबल में 6 कितना बार में आता है 3 टाइम पे। तो 3 से नीचे 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर क्या आ जाएगा 3। फिर यहाँ पे माइनस का साइन रखेंगे। 3 का टेबल में 6 कितना बार में आता है 2 बार में। तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, 2x इंटू 2 क्या हो जाएगा 4x। क्लियर, ऑब्वियसली। अच्छा अब तुम एक चीज को देखो, यहाँ पे भी नीचे 6 है, यहाँ पे भी नीचे 6 है। अगर तुम इसको देखोगे ये डिवाइड में है तो इक्वल्स टू के उधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई में यहाँ पे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं -17/6 इंटू 6। तो ऐसे लिखने से देखो फिर क्या होगा कट जाएगा ऐसे ऐसे। तो उससे अच्छा तुम पहले यहीं पे देख लो ना कि ये डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो यहीं पे काट लो, क्यों उधर ले जाने का जरूरत। तो 6 से 6 कटा, ओके। तो क्या होगा -17 लेस देन 3 माइनस 4x। अब देखो ये माइनस में है, लेस देन के उधर जाएगा क्या होगा प्लस हो जाएगा। तुम बोलोगे भाई माइनस में है तो इनइक्वलिटी पलट देंगे, नहीं। कब पलटेंगे, जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तब। यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड थोड़ी ना कर रहे, इसको उधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 4x। अब 17 को इधर लाएंगे तो -17 + 3 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। और 4 के टेबल में 20 कितने बार में आता है 4 1 ज़ा 4 एंड 4 5 ज़ा 20, यानी कि x इज लेस देन 5। ये समझ में आया, समझ में आया, ओके। नाउ सिमिलरली अगर इसको देखोगे तो यहाँ का भी एलसीएम क्या आएगा दोस्त 6 आएगा। तो 2 का टेबल 6 3 बार में आएगा, तो 3 ऊपर माइनस 2 बार, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x। और ये क्या होगा लेस देन 2, ठीक है। 6 देखो यहाँ पे डिवाइड में, इक्वल्स टू किधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे -6 होता तो यहाँ पे इनइक्वलिटी पलट जाता मल्टीप्लाई होने का, लेकिन यहाँ तो माइनस नहीं है तो छोड़ देंगे, ओके। 6 2 ज़ा 12। अब देखो -4x है तो -4x को उधर ले जाओ, 3 और 12 को इधर ले आओ, तो यह क्या हो जाएगा -12 और उधर जाकर क्या हो जाएगा 4x। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे कितना बचेगा दोस्त -9, और ये किससे लेस देन होगा 4x से। समझ में आया, अच्छा। तो अगर इसको प्रॉपर ढंग से देखें तो यहाँ पे बोल सकते हैं -9 लेस देन 4x। तो इसको ऐसे करके लिख लेते हैं 4x ग्रेटर देन -9। उल्टा कर दिया ना, देखो अभी भी 4x की तरफ ही इनइक्वलिटी का साइन मुंह खुला हुआ है -9। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो -9/4, तो काटो 4 2 = 8, 4 2 = 8, 4 5 = 20, यानी कि -2.25। x ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू -2.25। क्लियर, अच्छा। तो अब क्या करें सर, अब क्या करें, तो यहाँ पे एक बार x क्या है 5 से छोटा है, एक बार x क्या है 5 से छोटा है, और एक बार x -2.25 से बड़ा है। हाँ तो उससे क्या दिक्कत है, तुम एक काम करो ना, पहले क्या करो बीच में x लिख लो। अब शांत हो जाओ। अब देखो पहले x क्या है मेरा 5 से छोटा है, तो इधर मुंह खोल दो। x किससे छोटा है 5 से, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। क्लियर, अच्छा। अब एक बार देखो x की तरफ मुंह खोलाओ, मतलब x बड़ा है, किससे बड़ा है -2.25, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे -2.25। बड़ा है ना, तो बड़ा कौन है x है, तो यहाँ पे दोनों में बड़ा कौन है x है, तो x तरफ मुंह खोलो। यहाँ पे इक्वल्स टू का भी साइन है ना, यानी कि x 2.25 भी हो सकता है, तो यहाँ पे लिख लो, तो बन गया। आई होप समझ में आया होगा यार, समझ में आया। तो यहाँ पे क्या लिखा है ग्राफ द सॉल्यूशन, क्या लिखा है ग्राफ द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन, ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑन अ नंबर लाइन। अब देखो इसको नंबर लाइन में हमको दिखाना है, ठीक है। तो x किससे बिलोंग करता है होल नंबर से। होल नंबर शुरुआत कहाँ से होता है बताओ हमको, 0 से होता है, ऑब्वियसली 0 से होता है यार। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक नंबर लाइन बनाएंगे, ठीक है। तो x जो है मेरा -2.25 से बड़ा है, तो -2.25 क्या होता है, उसके बाद क्या आएगा, मतलब उससे पहले क्या आएगा -2 से क्या आएगा -1 0 1 2। तो लेकिन यहाँ पे x मेरा क्या है बिलोंग करता है होल नंबर से, तो होल नंबर का नंबर लाइन स्टार्ट ही होता है 0 से। 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा इन्फिनिटी तक। तो ये नेगेटिव नंबर का कुछ कर ही नहीं पाएंगे हम लोग, क्योंकि नेगेटिव नंबर हम लोग के नंबर लाइन में होगा ही नहीं। समझ में आया, समझ में आया। तो
तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो मेरा सेट का आंसर होगा नंबर लाइन पे 0 1 2 3 4 5 एंड देन 6। अच्छा प्रॉपर सर्कल करना है यार सबको, ठीक है। तो ये हो गया मेरा सेट का आंसर। समझ में आया नेगेटिव वाले को क्यों एक्सक्लूड किए, क्योंकि नेगेटिव वाले को इसलिए एक्सक्लूड किए क्योंकि वो होल नंबर में आता ही नहीं है, ठीक है। अगर रैशनल नंबर या रियल नंबर होता तब वहाँ पे हम लोग कर सकते थे नेगेटिव नंबर को इंट्रोड्यूस, बट यहाँ पे करके कोई फायदा ही नहीं क्योंकि होता ही नहीं है। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। नाउ ट्राई द फिफ्थ वन, ठीक है। बाय नहीं, ट्राई फिफ्थ वन पॉज करके ट्राई करो, उसके बाद मैं बताता हूँ। आई होप समझ में आया होगा लास्ट क्वेश्चन। नाउ अब फिफ्थ वन क्वेश्चन को अगर गौर से आप देखोगे तो इस क्वेश्चन में आपको मेंशन किया गया है, थोड़ा जूम करके देख लेना यार, थोड़ा सा फोटो अनक्लियर है, बट अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या लिखा है, सॉल्व 2x प्लस 1/3 2x प्लस 1/3 एंड ग्रेटर देन, मेरे यहाँ पे भी लिखा हुआ है, क्यों देख रहे हो इधर हम, 3x माइनस 2/5 3x माइनस 2/5, और जो x है मेरा वो कहाँ से बिलोंग करता है, x बिलोंग्स टू r, कैपिटल R क्या होता था, रियल नंबर, ओके। ना अगर आप देखोगे जैसे कि अगर यहाँ पे इक्वल्स टू होता तो क्या करते आप बताओ, अगर यहाँ पे इक्वल्स टू होता तो क्या करते, सबसे पहले देखते भाई ये फ्रैक्शन वाला नंबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ऑब्वियसली यार मैंने क्या बोला, ये जो मेरा इक्वल्स टू होता है, इक्वल्स टू की जगह इनइक्वलिटीज आ गया तो उसको भी उसी तरह से सॉल्व करना है, कोई फर्क नहीं है। बस यही फर्क है, अगर माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो इनइक्वलिटी का साइन पलट जाएगा, बस ये 5 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा या 3 उधर मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 5, सॉरी इतना गंदा राइटिंग का हो गया मेरा यार, 5 इंटू 2x प्लस 1, ठीक है, ग्रेटर देन 3 इंटू 3x माइनस 2, 5 2 जा 10x एंड 5 1 जा 5, ओके, ग्रेटर देन 3 3 जा 9x एंड 3 2 जा 6, ओके। अब देखो ये 9x है, इसको इधर लेके आओ LHS में, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 10x माइनस 9x, और ये 5 यहाँ प्लस में तो इक्वल्स टू किधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, ऑब्वियसली, तो -6 और ये क्या हो गया -5, तो 10 में से 9 जाएगा बचेगा 1, तो 1 को लिखते नहीं है, तो ये क्या हो गया x, 6 माइनस माइनस प्लस और ये प्लस हो गया, यानी कि जो मेरा x होगा वो -11 से बड़ा होगा, ओके। तो यानी कि हमको नंबर लाइन बनाना है, ठीक है। अब तुम बताओ, यहाँ पे मान लो प्लस इन्फिनिटी बना ले, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी बना ले, किससे बड़ा होना चाहिए, -11 से, तो -11 यहाँ होगा तो इससे पीछे -10 होगा, है ना। उसी तरह चलते 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 मान ले यहाँ पे 0 आया, चलते 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 यहाँ पे कोई भी नंबर, सब नंबर मिलता रहेगा, लेकिन हमको क्या बताना, x जो है मेरा वो -11 से बड़ा होगा। तुम क्या करोगे ना, देखो दो तरह से लिख सकते हो आंसर, या तो यहाँ पे देखो -11 भी चाहिए ना, देखो ये रखा हुआ है, तो यहाँ पे एक ऐसे सर्कल बनाओगे और क्या करोगे, आगे लाइन खींच दोगे। इससे क्या मतलब होता है, -11 से लेके सारा नंबर आएगा, सारा सारा, जैसे -11 और -10 के बीच में काफी सारे नंबर आ सकते हैं ना, फ्रैक्शंस वाले, वो भी आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में देखोगे, हम लोग ने क्या करता है, डॉट 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 किया था, उससे मतलब क्या होता है, -1 ही चाहिए और -1 और 0 ही चाहिए, -1 और 0 के बीच में जितने नंबर है वो नहीं चाहिए, 0 और 1 चाहिए, 0 और 1 के बीच में जितने नंबर है उसको नहीं चाहिए, जैसे 2/3 हो गया, 6/7 हो गया, इस तरह के नंबर जो फ्रैक्शंस वाले नंबर वो नहीं आएंगे, ठीक है, जब डॉट डॉट करेंगे, समझ में आया। तो रियल नंबर में यही तो फायदा होता है ना, रियल नंबर मतलब सारा नंबर, नंबर लाइन में इंटीजर में जितने भी नंबर पढ़े हैं आपने सब इंक्लूड हो जाते हैं। तो यहाँ पे -11 से लेके सारे, या तो कोई ऐसे बना सकता है तब भी सही है, कोई ऐसे भी बना सकता है, सॉरी कोई और कैसे बना सकता है, कोई ऐसे भी बना सकता है, कैसे, ये ना लिख करके अगर वो चाहे तो ऐसे भी कर सकता है, कैसे, यहीं पे -11 पे ऐसे सर्कल कर लेगा एंड देन इसी के ऊपर एक लाइन बढ़ा देगा, ये भी कर सकता है, तुमको जो पसंद है वो कर लेना, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी इजी, ओके। नाउ ट्राई टू सॉल्व दिस वन, सिमिलरली है क्वेश्चन, एकदम डिट्टो सेम क्वेश्चन है, सॉल्व करो, इसका आंसर कमेंट करो और चेक करो मेरे से, ठीक है। अगर नहीं बनता तो मैसेज करना, डीएम करना, किस पे डीएम करोगे भाई, इसमें कर लेना, ADNN अदनान 011, ठीक है, ओके। चलो ट्राई करोगे, ओके, ट्राई करके मैसेज करना कि हो गया नहीं हुआ बताना, ठीक है। नाउ ट्राई टू सॉल्व दिस वन, सेम क्वेश्चन, एकदम सेम है, लेकिन चलो मैं बता देता हूँ ये वाला, इसमें डबल इनइक्वालिटी लगा हुआ है, ठीक है। देखो, फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ x, मतलब x का कितना दूर तक आंसर आएगा, रेंज मतलब बड़ा, कितना दूर तक आंसर आ सकता है, तो ठीक है। इन इक्वेशन क्या है यहाँ पे, -1/5
लेस देन 3x/10 प्लस 1 लेस देन 2/5। समझ में आया? कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, एक तो मैंने सिखाया था, या तो इसको एक तो ऐसे कर लो, एक बार इसको बना लो और फिर एक बार इसको बना लो, फिर सॉल्व करो, फिर लास्ट में मर्ज कर दो। ठीक है, समझ में आया? ये सिखाया था मैंने। लेकिन यहाँ पे एक और तरह से आप कर सकते हो। देखो, ये वाला दूसरा तरीका से सिखा रहे हैं। ठीक है, दूसरा तरीका से कैसे करेंगे? दूसरा तरीका से हम लोग ऐसे करेंगे कि सबसे पहले x वाला है कहाँ, पहले वो देखेंगे। x मेरा बीच में है, और जब भी हमको किसी वेरिएबल का आंसर निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, उसको अकेला करते हैं। तो देखो यहाँ पे अकेला पहले, सबसे पहले 1 हटेगा, क्योंकि प्लस में 1 को हटाना है। तो क्या करेंगे हम लोग, 1 अगर यहाँ से घटा दे तो कैसे घटाएंगे, लिखेंगे TRACTING सब्ट्रैक्टिंग 1, यानी कि -1/5, यहाँ पे भी -1 आएगा। ठीक है, लिखेंगे 3x/10 प्लस 1, अब -1 यहाँ पे भी आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन, अब क्या है 2/5 -1। ठीक है, अब देखो, कुछ नहीं तो इसके नीचे 1, कुछ नहीं तो इसके नीचे 1, क्यों? क्योंकि ये दोनों फ्रैक्शन है, इसीलिए हम 1 1 किए। अब देखो सॉल्व कर सकते हो। अब इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 5। देखो इसका डिनोमिनेटर पहले से 5 है तो -1, इसका डिनोमिनेटर में 1 है तो 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, -5। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, +-1 खत्म, तो क्या बचा 3x/10। ठीक है, लेस देन का साइन, 5 2 -5। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का, -6/5। ठीक है, लेस देन का साइन, 3x/10, फिर साइन देंगे, एंड देन प्लस माइनस माइनस -3/5 ना। अब देखो सबका डिनोमिनेटर में क्या है, 5 10 5। ठीक है, अच्छा 5 10 5, अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर जो भी है सबका डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे। 5 और 10 का एलसीएम क्या आता है, 10 आता है। तो अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ओके, एक मिनट, जस्ट कॉपी कर लें। देखो नाउ, अब हम लोग क्या करेंगे, अब थोड़ा सा गौर करो। मैंने क्या बोला, सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 10। जो एलसीएम आएगा उसी चीज से हम लोग सब तरफ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाई, किससे, 10 से कर दो मल्टीप्लाई। तो 10 इंटू -6/5। ठीक है, 3x/10, यहाँ पे भी 10 मल्टीप्लाई में हो गया। ठीक है, -3/5 इंटू 10 कर दो। अब देखो 5 1 ज़ा 5, 5 टू द 10 कटा, ये 10 से ये 10 कट गया, 5 1 ज़ा 5, 5 टू द 10 कटा, तो क्या बचा, -2 6 ज़ा 12, लेस देन 3x। ठीक, सॉरी यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 इंटू 2 -6। समझ में आया यहाँ तक? अरे बहुत आसान है यार। ठीक है, ये वाला समझ में आया यहाँ तक स्टेप? ओके, अब बताओ, अब x के साथ क्या रह गया, साथ में 3। हम क्या करना चाहेंगे, सब अब 3 हटाना चाहेंगे, तो क्या लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, डिवाइडिंग या डिवाइडिंग नहीं, या डिवाइड लिखो, डिवाइड बाई 3, DIVIDE, डिवाइड बाई 3 नाउ। तो -12/3 क्या हो जाएगा, 3x/3, एंड देन यहाँ पे -6/3। अब बताओ, ये कटेगा, 3 1 3, 3 4 12, 3 3 कटा, 3 2 6, तो बचा क्या, -4 इज लेस देन फ्रॉम x, एंड ये किस जगह -2, यानी कि जो मेरा x होगा, देखो ये दो इनइक्वालिटीज के बीच में फंस गया, -4 और -2, यानी कि x -4 और -2 के बीच वाला नंबर होगा, तो कौन होगा यार, -3। समझ में आया? लेकिन ये एग्जैक्टली आंसर नहीं होगा -3। देखो अच्छे से अगर मैं समझाऊं तो एक काम करते हैं, यहाँ पे यहाँ पे एक और पेज चाहिए हमको, तो जस्ट अ मिनट। ओके, नाउ अगर आप देखोगे प्रॉपरली, अगर आप देखोगे यहाँ पे मेरा x कहाँ से कहाँ है, -4 से लेके -2 के बीच में है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर लाइन बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे -∞ होगा, यहाँ पे +∞ होगा,
तो मान लो -4 यहाँ पे कहीं आता है, ठीक है। और मान लेते हैं फिर क्या आएगा -3 एंड यहाँ पे क्या आया -2। अब बस इतना ही से मतलब है। तो देखो x मेरा -4 होगा क्योंकि यहाँ पे ये है साइन है, तो यानी कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, डॉट बनाएंगे। ये डॉट बताएगा कि -4 आंसर में इंक्लूड है, ठीक है। -4 से कहाँ तक होना चाहिए, -2 तक। तो ऐसे लाइन खींचेंगे हम लोग, 2 पे आके रुक जाएंगे। अब 2 पे क्या करेंगे, लाइन पे हॉलो बनाएंगे। हॉलो क्यों बनाए, हॉलो सर्कल क्यों बनाए, क्योंकि देखो यहाँ पे ये साइन नहीं है, -2 नहीं होगा, -2 नहीं चाहिए आंसर में। अगर नीचे ये लाइन खींचा रहता है मतलब हमको -2 आंसर में इंक्लूड करना है, लेकिन यहाँ पे लाइन नहीं खींचा हुआ, इसका मतलब -2 को एक्सक्लूड करना है। तो ये हमको बताता है -4 से लेके -2 के बीच में चाहे जितना भी नंबर आ जाए सबको लेना है, इवन -4 को भी लेना है, लेकिन किसको छोड़ना है, -2 को। समझ में आया? आई होप ये क्वेश्चंस भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो वापस से थोड़ा पीछे जाओ एंड वापस से सुनो। तो नाउ आई होप आपने वो सारे क्वेश्चंस तो बनाए होंगे, ठीक है, ठीक है, समझ में आया होगा, ठीक है। नाउ ट्राई टू सॉल्व दिस वन क्वेश्चन, 9th नंबर। ओके, 8 आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। नहीं 8 मैंने बताया ना, नहीं 7 मैंने बताया, 8 आप खुद से ट्राई करोगे। देखो सेम क्वेश्चन है, एकदम सिमिलर है, ट्राई करना सॉल्व करने का। बस इस वक्त क्या होगा, ये रियल नंबर से बिलोंग नहीं करता है, इंटीजर से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे वही वाला आपको कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, डॉट डॉट बना पड़ेगा नंबर के ऊपर, ठीक है। जब रियल नंबर आएगा तब आप एक लाइन यूज करोगे। क्लियर? ओके, नाउ just I'm moving in the question number 9. Now see that question number 9, क्या question number 9 बोलता है, P is a solution set of 8x minus 9, यानी कि P जो होगा इसका सॉल्यूशन होगा, किसका सॉल्यूशन होगा, 8x minus 1 less than 5x plus 2, ओके, इसका सॉल्यूशन होगा। क्यों इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ दूसरा वाला का, ठीक है, क्यों किसका सॉल्यूशन होगा, इसका सॉल्यूशन होगा, किसका होगा सॉल्यूशन, 7x minus 2 ग्रेटर देन 3x प्लस 6, 3 इंटू एक्स प्लस 6, ओके। और दोनों में x कहाँ से बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से, ओके। अच्छा, p और फाइंड द सेट p p क्या है, p n u का मतलब इंटरसेक्शन, p इंटरसेक्शन q, ये हमको फाइंड करना, ओके। वेरी सिंपल। थोड़ा सा अगर आपको सेट्स देख के डर लग रहा होगा तो उससे बहुत बड़ा कोई बात नहीं, देखो हो जाएगा तुरंत। सबसे पहले हमको सॉल्यूशन सेट निकालना है 8x माइनस 1 का, 8x माइनस 1 ग्रेटर देन 5x प्लस 2, इसको सॉल्व करो। देखो 8x है यहाँ पे, तो 5x को इधर लेके आओ, तो 8x माइनस 5x, ठीक है, एंड देन 1 को उधर भेज दो, ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 3, ये क्या हो जाएगा, 3x लेस देन, सॉरी 3x ग्रेटर देन 3, तो x ग्रेटर देन 3/3, कट के आगे जाएगा 1, यानी कि जो x होगा मेरा वो किससे बड़ा होना चाहिए, 1 से। यानी कि मेरा जो p का जो सेट है, तो p का जो मतलब अब यहाँ पे सॉल्यूशन सेट बनेगा, तो p का सेट कैसे बनाएंगे, 1 से बड़ा चाहिए। 1 से बड़ा नंबर कौन आता है, 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। ये किसका सेट है, नेचुरल नंबर का। अगर चाहो तो नंबर लाइन में कैसे बनाओगे, इसके लिए नंबर लाइन क्या होगा, 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी। तो हमको आंसर में देखो क्या बोल रहा है, x बड़ा है, किससे बड़ा है, 1 से, यानी कि यहाँ पे डॉट करेंगे एंड देन ऐसे बढ़ जाएंगे आगे। सॉरी, ये रियल नंबर होता तो लाइन खींचते ना, यहाँ पे हमको क्या है, इंटीजर है, सॉरी नेचुरल नंबर है ना, तो हमको ऐसे डॉट 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 करके दिखाना पड़ेगा। तो कहाँ तक करोगे, इन्फिनिटी, इसीलिए हम लोग इसको ना यूज करके हम लोग ऐसे सेट बना लिए। क्लियर हो गया बात? अच्छा, ये तो p का मेरा सॉल्यूशन सेट बन गया। उसी तरह से q का सॉल्यूशन सेट बना लेते हैं। अच्छा, q का सॉल्यूशन सेट बनाने के लिए देखो q के लिए इक्वेशन क्या लिखा है, 7x माइनस 2। तो सॉल्व करते हैं यार, लिखो 7x माइनस 2 ग्रेटर देन 3 इंटू एक्स प्लस 6, ओके। तो 7x माइनस 2, ठीक है, ग्रेटर देन 3x and 3 6 are 18, okay. Now if you solve it, 7x minus 3x ग्रेटर देन कितना लिखा हुआ, 18, और माइनस 2 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 2, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बच गया 7 में से 3 जाएगा, कितना बचता है दोस्त, 4 बचता है ना, 5 क्यों लिखे, तो 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 4x एंड 18 प्लस 2 20। नाउ इफ यू सॉल्व इट, 4 5 जा 20, यानी कि x जो होगा मेरा वो किससे बड़ा होगा, 5 से बड़ा, और 5 को भी इंक्लूड करेंगे, तो यानी कि यहाँ पे जो मेरा x होगा, x बिलोंग्स टू यहाँ पे क्या होगा, 5 6
7 8 डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ओके, तो हमको किसका क्या चाहिए, ये तो हो गया मेरा पी सेट, और ये जो मेरा हो गया यहाँ पे एक्स ना लिख करके क्यों लिखना ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है, क्यों बिलोंग्स टू, या तो क्यों इक्वल्स टू लिखना ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्या लिखेंगे, क्यों इक्वल्स टू, तो हमको एक सेट मिल गया P और एक सेट मिल गया Q, तो P का सेट क्या था मेरा दोस्त, 2 3 डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक था। हमको क्या चाहिए, P इंटरसेक्शन Q, मतलब P और Q में कॉमन क्या है, तो P और Q में कॉमन कहाँ से शुरू होता है, देखो यहाँ पे अगर जाके 4 देखोगे 5 देखोगे, तो यहाँ से देखो 5 से लेके ये सारे तो कॉमन ही निकल रहे हैं ना, सारे तो कॉमन निकल रहे हैं, तो कॉमन लिखने के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पे 5 6 7 डॉट 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 इन्फिनिटी। तो ये हो गया मेरा सॉल्यूशन सेट। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन रहता है यार, बस तुमको फ्री में मार्क्स देके जाता है, बस एक बार पढ़ के चले जाना एग्जाम में, दैट्स इट, एक बार पढ़ लोगे फिर भूल नहीं पाओगे इसको, ठीक है। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। चलो कुछ और क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, ठीक है। नाउ इफ यू सी, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या मेंशन किया, सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन एंड ग्राफ द सॉल्यूशन ऑन अ नंबर लाइन। इसका क्या सॉल्यूशन बना, इसका सॉल्यूशन भी निकालना है, इसका ग्राफ भी बनाना है नंबर लाइन में। तो इसका इन इक्वेशन क्या देखो, तो 2x माइनस 5, ठीक है, लेस देन 5x प्लस 4 लेस देन 11, और x बिलोंग्स टू रियल नंबर। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अगर हम लोग देखो, तुम बोलोगे भाई वही वाला है ना जहाँ पे हम लोग अभी आप सिखाए थे, अगर बीच वाला को अकेला करना है, बीच में अगर एक्स है, तो अगर तुम देखोगे वहां पे एक ही जगह एक्स था भाई, अगर तुम देखोगे, अगर तुम देखना चाहोगे, तो यहाँ पर देखो एक्स है सिर्फ एक जगह, यहाँ पे एक्स है ना, इधर एक्स है ना इधर एक्स है, तब इस तरह से हम लोग कर सक पा रहे थे। मतलब ये वाला तो एक मेथड हुआ ना, दूसरा मेथड भी मैंने बताया था ना, दूसरा मेथड कौन सा, हाँ ये वाला, देखो यहाँ पे सिर्फ एक जगह x है, तब जाके हम लोग ये सब्ट्रैक्टिंग 1 1 ऐसे हर दोनों एक बार में सब सॉल्व कर पा रहे थे। लेकिन अगर दो तरफ x रहेगा, दो तरफ x रहेगा, तो हमको ये वाला मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे इसमें सॉल्व किया हम लोग ने, ठीक है, तो इससे ज़्यादा आसानी होगा। क्या मतलब, देखो हम समझा रहे हैं तुमको। यहाँ पे अगर तुम ऑब्जर्व करोगे, देखो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो अगर तुम यहाँ पे सॉल्व करना चाहोगे तो बोलोगे भाई यहाँ पे 4 है, 4 हटाएंगे तो 70 से -4 करेंगे, तो यहाँ से -4 करोगे, यहाँ -4 हो गया, यहाँ 9 हो गया, -9 हो जाएगा इस तरफ में, समझ में आया। अब नहीं समझ में आ रहा, ले करके दिखा रहे, बीच वाले को हटाना है तो बोलेंगे सब्ट्रैक्टिंग -4 फ्रॉम ऑल साइड, फ्रॉम ऑल तरफ, ठीक है, 2x -5 -4 लिखेंगे यहाँ के, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x प्लस 4 -4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 -4, ठीक है, तो क्या हो गया, ये हो गया 2x -9। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x, क्योंकि 4 4 कट गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 में से 4 जाएगा तो बचेगा कितना, 6 बचेगा ना, 7 बचेगा। ओके, अब देखो यहाँ पे x के साथ -9 हो गया, अब फिर लिखेंगे एडिंग +9 ऑन ऑल तरफ, ठीक है, एडिंग +9, तो यहाँ पे 9 हटेगा, यहाँ पे +9, तो मतलब ये चलते रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग को दूसरा वाला मेथड को अपनाना पड़ेगा, समझ में आया, ठीक है, वही वाला मेथड जब दोनों तरफ लाइन खींच के बनाना है, ठीक है। देखो तो क्या करेंगे, एक बार इसको ले लेंगे 2x -5 लेस देन 5x प्लस 4, समझ में आया। फिर एक बार क्या करेंगे, लाइन बीच में लाइन खींच लो, फिर बनाओगे, या तो लाइन खींचने का जगह तुम एंड लिख लो तो ज़्यादा अच्छा है, तुम्हारे बुक में एंड लिख करके सॉल्व किया ज़्यादातर, एंड 5x प्लस 4 लेस देन 11, सॉल्व करो इसको कैसे, जैसे अब देखो इसको तो नॉर्मल सॉल्व करना आता है ना भाई, बस वैसे ही करेंगे, 2x है इधर और इधर 5x है, तो क्या करो -5 को रहने दो इधर, और 4 को इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा -4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x, क्या हो जाएगा -2x, एंड अब देखो 5x को यहाँ रहने दो, अब 4 को उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा 11 -4, अच्छा 5 -4 क्या हो गया -9, यहाँ पे क्या बचेगा 3x, ठीक है, फिर लिखेंगे एंड, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x लेस देन 11 में से 4 जाएगा, बचेगा 7। अगला स्टेप देखो 3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में होगा, तो ऐसे ही काट लो यार, 3 1 3 3 3 9, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं x इज ग्रेटर देन -3। देखो अभी किसके तरफ था साइन, ऊपर में x की तरफ था, अभी भी साइन x की तरफ में, तो मैंने कुछ चेंजेस नहीं किया, ठीक है, डर मत जाना, एंड x, अब इसको काट लो, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 0.5 4 20, मतलब 1.4, ठीक है।
एक बार x मेरा किससे छोटा होगा, 1.4 से, और यहाँ पे बोलने का मतलब क्या होगा, x इज ग्रेटर देन -3, मतलब x बड़ा होगा। तो अल्टीमेटली हम लोग बीच में क्या रखेंगे, x। अब देखेंगे x किससे छोटा होगा, 1.4, तो यहाँ पे लिख देंगे 1.4। अब यहाँ पे x बड़ा है ना, तो यहाँ पे बड़ा का आंसर कर दो। अब ये क्या है, -3। समझ में आया, समझ में आया। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड ग्राफ ऑन द सॉल्यूशन द नंबर लाइन। नंबर लाइन में इसका सॉल्यूशन दिखाना है, ठीक है। नंबर लाइन में इसका सॉल्यूशन दिखाना है, तो पहले नंबर लाइन बना लो। ओके, बना लिए। यहाँ पे -∞, यहाँ पे +∞। ओके, अच्छा -3 से चाहिए, -3 से शुरुआत हो रहा, तो यहाँ पे -3 बना लो। क्लियर, डॉट डॉट यहाँ डाल दें क्योंकि बहुत, ठीक है। अच्छा, -3 हो गया। अब किससे छोटा चाहिए, 1.4 से। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं 1, यहाँ पे लिखेंगे 1.4, यहाँ पे लिख देंगे 2। कॉमन सेंस ना, 1.4 2 से छोटा होगा, 1 से बड़ा होगा। तो हमको आंसर में कहाँ से चाहिए, देखो -3 मेरे आंसर में है क्योंकि यहाँ पे ये इक्वल्स टू का भी साइन है, लेकिन 1.4 आंसर में नहीं है। जो आंसर में नहीं रहता है इसके ऊपर क्या करेंगे, हॉलो सर्कल। जो आंसर में है उसके लिए डार्क सर्कल या फिल्ड सर्कल, ठीक है। अब क्या करो, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींच दो, बस। समझ में आया, इतना ही आसान है यार, बस हो गया आंसर। क्लियर, ठीक है। चलो दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, अच्छा जैसे हम लोगों ने 10th को बनाया, सिमिलरली 11 को भी वैसे ही बनाएंगे। सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन एंड राइट द सॉल्यूशन सेट। यहाँ पे सॉल्यूशन सेट लिखना है और साथ साथ रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑन अ नंबर लाइन, नंबर लाइन में भी दिखाना है, ठीक है। तो पहले से पहले सॉल्यूशन सेट लिखते हैं, 13x - 5 लेस देन 15x + 4 7x + 12। ओके, अब यहाँ पे x कहाँ से कहाँ बिलोंग करता है, x रियल नंबर से बिलोंग करता है, ठीक है। अच्छा, तो इसको भी वही करेंगे। देखो यहाँ पे तीनों जगह x है, तो अब इसमें ना हम लोग वही वाला अप्रोच लगाएंगे, ये वाला एंड वाला। तो यहाँ पे भी लिखेंगे 13x - 5, ठीक है। सॉरी सॉरी नॉट, यहाँ पे एंड कहाँ लगाएंगे भाई, यहाँ पे तो साइन आएगा ना। ओके, ये क्या होगा, 15x + 4। समझ में आया। फिर यहाँ पे लिखेंगे एंड। यार एंड लिखेंगे ना, एकदम जगह नहीं बचेगा। तुम एंड तुम अपने कॉपी में लिख लेना, ठीक है। हमको वो लाइन ही पसंद है, पीछे बीच में लाइन खींच दो, बीच में दीवार खींच दो। दूसरा में देखो 15x + 4 7x + 12। ओके, समझ में आया। अब देखो इसको सॉल्व करो। देखो यहाँ पे 15x बड़ा है, तो यहाँ पे 13 को इधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, -5 इधर रहेगा और +4 को इधर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा, -4, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, 13x उधर आएगा, तो 15 - 13x लिख लो, 15x - 13x, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस कराएगा, 5 4 9, एंड 15 में से 13 जाएगा तो बचेगा 2, यानी कि 2x। ओके, अगले स्टेप में इसको लिख ले, 2x इज ग्रेटर देन -9। यहाँ से काटेंगे तो कितना आएगा, सॉरी 2 4 = 8 एंड 1 बचेगा, 2 5 = 10, तो यानी कि x इज लेस देन -4.5। क्लियर। सिमिलरली यहाँ पे भी वही करना है, 15x इज लेस देन, अच्छा सॉरी नॉट लेस देन, 7x को इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, एंड देन लेस देन का साइन, 4 को उधर ले जाओ तो 12 - 4, तो 15 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 8x, एंड 12 में से 4 जाएगा तो बचेगा 8। अब यहाँ से 8 से 8 कटा तो बचा x, x इज ग्रेटर देन 1। यहाँ पे x किससे बड़ा है, -4.5 से, और यहाँ पे x किससे बड़ा है, 1 से। तो बीच में क्या काम करो, क्या करो, बीच में x लिखो। अब देखो 1 है ना, 1 बड़ा है, तो यानी कि x इज ग्रेटर देन 1, ओके। एंड इधर तुम देखोगे x इज लेस देन सॉरी x इज ग्रेटर देन -4.5, तो -4.5 इधर लिखेंगे एंड यहाँ पे साइन कर लगाएंगे, ठीक है। इक्वल्स टू का भी साइन था क्या, नो देयर इज नॉट एनी इक्वल्स टू साइन, ओके। बट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये चीज़ का हमको ध्यान रखना है, यही सारा गेम बिगाड़ सकता है हम लोग का, ठीक है। तो वापस इसके लिए क्या करेंगे, हमें क्या बोला है, राइट अ सॉल्यूशन सेट, ओके। राइट अ सॉल्यूशन सेट रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ नंबर लाइन, ओके। तो हम लोग नंबर लाइन सबसे पहले खींच लेते हैं, नंबर लाइन खींच लिए। कहाँ से कहाँ तक का बात हो रहा है, यहाँ से -∞ बना लो, यहाँ से +∞ बना लो, यहाँ पे -5 बना लें, यहाँ पे -4.5 बना लें, यहाँ पे 4 बना लें, -4 डॉट 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 चलते चलते यहाँ पे 1 डॉट 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 इन्फिनिटी, ठीक है। -4.5 आंसर में नहीं है, एक्सक्लूड है, तो इसको जीरो में मतलब जीरो बनाएंगे या हॉलो,
इसको कहाँ तक ले जाएंगे, 1 तक ले जाएंगे, यहाँ पे फॉलो। सो यही था मेरा आंसर। समझ में आया? आई होप समझ में आया होगा। अच्छा, बस यहाँ तक हम लोग का काम खत्म नहीं होता है। यहाँ पर तो हम लोग सिर्फ इसको नंबर लाइन में देखा है ना, अब इसको हमको सेट में भी तो लिखना है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है राइट द सॉल्यूशन सेट। तो सॉल्यूशन सेट कैसे लिखोगे? तो सॉल्यूशन सेट लिखने को लिखोगे तुम x, अच्छा क्या करोगे, करली ब्रैकेट लगाओगे, लिखोगे x सच दैट -4.5 से मेरा x बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। ये चीज़ हम लोग लिखना सीखे किसमें, यहाँ पे लिख दो x बिलोंग्स टू, ये तो मेरा किसका हो गया, रोस्टर फॉर्म हो गया। ये सेट हम लोग सेट में सीखते थे क्लास 8 में, है ना। तो x सच दैट x जो होगा मेरा -4.5 और 1 के बीच का वैल्यू होगा। खत्म। समझ में आया? आई होप समझ में आएगा। ठीक है, सिमिलरली 12 आपको बनाना है। और कहाँ आंसर देना है, कमेंट सेक्शन में, या प्रॉब्लम होगा तो हमको वापस से मैसेज कर सकते हो @Adnan ADNAN Adnan 011 में। ठीक है, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, यहाँ पे हमको मैसेज करोगे, बोलोगे नहीं बना भाई इतना नंबर, एंड डेफिनेटली हम तुमको रिप्लाई कर देंगे वहाँ पे। ठीक है, ओके 12 नंबर बना लेना। ठीक है, नाउ वेयर इज द 13 वन। ओके, नाउ आपने सारा क्वेश्चंस बना लिया होगा। अब देखो वो तो मेरे क्वेश्चंस लिखा हुआ था, मतलब एज ए इक्वेशन बने हुए थे, बट यहाँ पे हम लोग को ना खुद से बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, वो वर्ड्स प्रॉब्लम है ना, तो वर्ड्स प्रॉब्लम को पढ़ के उसको अंडरस्टैंड करके हम लोग खुद से इन इक्वेशंस लिखेंगे। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जॉन नीड्स अ मिनिमम ऑफ 360 मार्क्स इन 4 टेस्ट। अच्छा, जॉन को कितना चाहिए, 360 मार्क्स चाहिए, कितना, 4 टेस्ट में, इन अ मैथमेटिक्स कोर्स। अच्छा, एक मैथमेटिक्स का कोर्स है, टू ऑब्टेन अ ग्रेड मार्क्स, उसको मैथमेटिक्स के कोर्स में ए ग्रेड लाना है। ठीक है, कितना ए ग्रेड लाने के लिए कितना कम से कम मार्क्स चाहिए, 360। ओके, यहाँ पे कितना बोल दिया दोस्त, 360 यहाँ पे बोल दिया, कितना लाना उसको, 360 लाना है। ठीक है, इन अ मैथमेटिक्स कोर्स टू ऑब्टेन अ ए ग्रेड। ओके, ए ग्रेड चाहिए इसको। ऑन फर्स्ट टेस्ट ही स्कोर्ड 88, 96 एंड 79 मार्क्स। अच्छा, फर्स्ट 3 टेस्ट, 3 टेस्ट में उसने इतना स्कोर कर चुका। व्हाट शुड ही स्कोर इन द 4th टेस्ट सो दैट ही कैन मेड अ ग्रेड ए। अच्छा, बोला 4 ग्रेड है उसको, मतलब 4 बार टेस्ट देना है, और चारों टेस्ट का मार्क्स जब जोड़े ना तो वो ए ग्रेड बन जाना चाहिए। और ए ग्रेड के लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि चारों टेस्ट का मार्क्स टोटल कितना आना चाहिए, 360, या तो 360 से ज्यादा। कॉमन सेंस है ना भाई, 360 कम से कम चाहिए, बोल रहा है मिनिमम टू मिनिमम 360 चाहिए ही चाहिए। तो यानी कि अगर 360 लाता है या 360 से ज्यादा ले आता है तो वो क्या हो जाएगा, ए ग्रेड आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कर लेंगे लेट द मार्क्स obtain इन 4th टेस्ट। ठीक है, 4th टेस्ट में कितना मार्क्स स्कोर किया, x। ठीक है, अच्छा सब का मार्क्स जोड़ के कितना आना चाहिए, कम से कम 360। तो यानी कि हम सब मार्क्स को जोड़ लेंगे, कितना लाया था, 88 प्लस 96 प्लस 79। अच्छा, 4th टेस्ट में हम लोग क्या माने, x, और कम से कम कितना बना चाहिए, 360। 360 से ज़्यादा होगा चलेगा, यानी कि इसका जो सम होगा ये टोटल मार्क्स का कम से कम 360, और 360 से ज़्यादा भी सकता है। तो यहाँ पे हम इसकी तरफ मुंह खोलेंगे, क्यों, क्योंकि ये इक्वल्स टू का मतलब क्या होता है, कम टू कम इतना हो जाएगा मिनिमम। और ये वाला जो साइन है मेरा, ये वाला ग्रेटर देन का, इसका मतलब क्या होता है, 360 से भी ज़्यादा। ऑब्वियसली इक्वेशन इन इक्वेशन बनाने का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। नाउ अब इसको ऐड कर दो। अच्छा, इसको ऐड कैसे करेंगे यार, इसको ऐड करने के लिए काम करते हैं, इससे 4 लेके इसको दे देते हैं, तो ये 100 हो जाएगा, 188, 188, 188 अभी ऐड कर ले, 188 हो गया। ठीक है, इसे 4 लेके इसको 100, 188, 188, और ये क्या हो गया, 75। ऐड करो तो 8 to 10, 13 का 1 नीचे बचा 3, 8 8 16 का 1 नीचे बचा 6, 263। ओके, तो ये कितना बन रहा है मेरा, 263 प्लस एक्स, ठीक है, इज ग्रेटर देन 360। ओके, तो x इज ग्रेटर देन 360 माइनस 263। अच्छा, 300 में से 200 जाएगा, बचेगा 100। अच्छा, 60 में से एक सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा, 360 माइनस 263। ओके, 6 कटा 5, 10 में से 3 जाएगा 7, 3 कटा 2, 15 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा दोस्त, 9। यानी कि x में उसको कम से कम तो 97 मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा, 97 या तो 97 से ज़्यादा। क्लियर?
ठीक है। देखो यहाँ पे कोई सॉल्यूशन सेट वगैरह सेट बनाने नहीं बोला था, तो सिंपल क्वेश्चन था, हमको बस एक इक्वेशन यहाँ तक लाके छोड़ देना है, तो ये मेरा हो जाएगा प्रॉपर आंसर। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया फिर से थोड़ा पीछे जाओ, पॉज करो एंड नाउ आई होप आपको इतना तो समझ में आया होगा। ठीक है, नाउ अब कुछ और वर्ड्स वाले प्रॉब्लम्स को हम लोग देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ओके देखो, अच्छा ये तो हो गया ना। अब देखो, an integer is such that one third of the next integer is at least two more than 1/4 of the previous integer. Find the smallest value of integer. Okay. देखो ये क्वेश्चन ना कई बार डिफिकल्ट हो सकता है अगर आप इसको ढंग से ना समझ पाओ तो क्या करना है इसमें। देखो सबसे पहले एक इंटीजर को मान लो, लेट द इंटीजर बी एक्स। ओके, एक इंटीजर, एन इंटीजर इज सच दैट वन थर्ड ऑफ द नेक्स्ट इंटीजर। तो सबसे पहले नेक्स्ट इंटीजर तो मान लिए, तो नेक्स्ट इंटीजर क्या होगा इसमें, नेक्स्ट इंटीजर क्या होगा, तो नेक्स्ट इंटीजर एक के बाद दूसरा इंटीजर क्या होगा, जैसे वन है तो वन के बाद दूसरा इंटीजर क्या होगा, वन प्लस वन यानी कि टू, एंड टू के बाद नेक्स्ट इंटीजर क्या होगा, टू प्लस वन यानी कि थ्री। समझ में। उसी तरह से अगर एक इंटीजर x है तो x के बाद दूसरा इंटीजर क्या होगा, x प्लस वन। समझ में आया। जैसे यहाँ पे टू के बाद दूसरा इंटीजर क्या होता है, टू प्लस वन, वन के बाद क्या होता है, वन प्लस वन। उसी तरह से एक्स के बाद दूसरा इंटीजर क्या होगा, एक्स प्लस वन। समझ में आया। अच्छा, प्रीवियस इंटीजर बोलने का मतलब क्या होता है, प्रीवियस इंटीजर बोलने का मतलब जो इंटीजर था उससे पहले वाला। तो जैसे कि अगर हम पूछेंगे मेरे पास एक इंटीजर थ्री है, थ्री से पिछला इंटीजर क्या होगा, तो तुम बोलोगे थ्री माइनस वन, तो थ्री माइनस वन क्या होता है, टू। अच्छा, एक इंटीजर मेरे पास एट है मान लो, तो एट से पिछला इंटीजर क्या हो जाएगा, एट माइनस वन, यानी कि पीछे जाने के लिए माइनस वन, आगे जाने के लिए प्लस वन। समझ में आया। तो उसी तरह से प्रीवियस इंटीजर क्या हो जाएगा, तो प्रीवियस इंटीजर मेरा क्या हो जाएगा, इंटीजर एक्स था तो एक्स से प्रीवियस क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन। यहाँ तक क्लियर हो गया। ओके, अब क्या बोला है, वन थर्ड ऑफ द नेक्स्ट इंटीजर। ठीक है, वन थर्ड ऑफ द नेक्स्ट इंटीजर इज एटलीस्ट टू मोर देन। ओके, वन थर्ड ऑफ द नेक्स्ट इंटीजर, वन थर्ड ऑफ द नेक्स्ट इंटीजर यानी कि एक्स प्लस वन। ओके, वन थर्ड ऑफ द नेक्स्ट इंटीजर इज एटलीस्ट टू मोर देन द वन बाई फोर्थ, यानी कि वन बाई फोर्थ ऑफ द प्रीवियस इंटीजर, मतलब वन बाई फोर्थ करोगे तुम प्रीवियस इंटीजर का तो वन बाई फोर्थ एक्स माइनस वन। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इज एटलीस्ट टू मोर देन वन बाई फोर्थ ऑफ द प्रीवियस इंटीजर, मतलब प्रीवियस इंटीजर से मेरा दो ज्यादा होगा नेक्स्ट इंटीजर। इसका अगर वन बाई थर्ड करेंगे ना और इसका वन बाई फोर्थ करेंगे, ठीक है, तो जो वन बाई थर्ड जो होगा वो किससे बड़ा होगा, वन बाई फोर्थ एक्स माइनस वन से होगा। ठीक है, कितना बड़ा होगा, दो बड़ा होगा, तो यहाँ पे इसीलिए प्लस टू करेंगे। ओके, अभी भी बड़ा कौन है, ये वाला है, तो इधर की तरफ साइन करेंगे। देखो, एन इंटीजर इज सच दैट वन बाई थर्ड ऑफ द नेक्स्ट इंटीजर इज एटलीस्ट टू मोर देन वन बाई फोर्थ ऑफ द प्रीवियस इंटीजर। ठीक है, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ इंटीजर, यानी कि सबसे पहले हमको इन इक्वेशन बनाना आना चाहिए। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इंटीजर को हम लोग मानेंगे एक्स, एंड इंटीजर इज सच दैट वन बाई थर्ड ऑफ द नेक्स्ट इंटीजर एटलीस्ट टू मोर देन, नेक्स्ट इंटीजर इज एटलीस्ट कम से कम दो, तो इसीलिए कम से कम दो लिख दिए। बड़ा है तो इसलिए हम लोग ग्रेटर देन का साइन जिसकी तरफ जो बड़ा है उसी करेंगे। ठीक है, इज एटलीस्ट टू मोर देन द वन बाई फोर्थ ऑफ द प्रीवियस इंटीजर। ठीक है, तो आगे वाला नेक्स्ट इंटीजर ऑब्वियसली पीछे वाला से बड़ा होगा, बट यहाँ पे कंडीशन था वन बाई थर्ड वन बाई फोर्थ, तो वो हम लोग कर लिए। क्लियर हो गया भाई। अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन बाई थ्री, और ये क्या हो जाएगा दोस्त, एक्स माइनस वन बाई फोर एन प्लस टू। बताओ अब सॉल्व होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियसली हो जाएगा। तो कर लेते हैं एक बार सॉल्व। ओके तो एक काम करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, ये वाले टर्म्स को उधर लेके जाते हैं, नहीं इसको रहने दो, इसको लेके आते हैं। तो x प्लस वन बाई थ्री माइनस ऑफ एक्स माइनस वन बाई फोर, ठीक है, ग्रेटर देन टू का साइन। अब तीन और चार का एलसीएम क्या होता है दोस्त, ऑब्वियसली क्या होगा, 12। तो 3 है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू एक्स प्लस वन, यहाँ पे माइनस 3 से एक्स माइनस वन, क्योंकि 4 के टेबल में 3 टाइम्स आता, 3 से ऊपर नीचे। ओके, तो क्या हो जाएगा, 4x प्लस 4, अच्छा नीचे में क्या हो जाएगा दोस्त, माइनस 3 इंटू एक्स, माइनस 3x माइनस वन बाई 12। ओके, अच्छा अजान हो रहा है, एक मिनट रुक जाते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम लोग का ये हो गया, एंड देन इससे पहले क्या था, एंड ग्रेटर देन 2।
तो यहाँ पे लगा देंगे ग्रेटर देन 2। ओके, अब देखो यहाँ 12 डिवाइड में, तो इक्वल्स टू किधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 में से 3x जाएगा तो कितना बचेगा x, 4 में से 1 जाएगा बचेगा कितना 3। ओके, 12 टू ज़ा 24। सही किया ना मैंने, 4 में से 1 जाएगा बचेगा 3 एंड 12 टू ज़ा 24, 24 माइनस 3 तो बचेगा 21। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ मिल गया, मिल गया। देखो -3, देखो -3 इंटू -1, देखो ये -3 इससे जाके मल्टीप्लाई होगा तो -3 इंटू -1 क्या होगा, +3। समझ में आया? देखो -3 इंटू -1 तो क्या हो जाएगा, +3। तो 4 3 ये हो जाएगा 7। ओके, नाउ x प्लस 7 ग्रेटर देन 24, यानी कि x का वैल्यू क्या आएगा 24 माइनस 7, तो वो क्या हो जाएगा x ग्रेटर देन 17। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ इंटीजर, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ इंटीजर यानी कि x इज इक्वल्स टू 17। समझ में आया? डेफिनेटली आसान है यार, ठीक है, आई होप। अब देखो 16 नंबर ट्राई करोगे। अच्छा ठीक है, मैंने इनिशिएट कर दे रहा हूँ, बाकी आप इसका आंसर कमेंट में करना, ठीक है। इनिशिएट मतलब शुरुआत कर देता हूँ, ठीक है। फाइंड द 3 लार्जेस्ट कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ 1/3 ऑफ फर्स्ट, 1/4 ऑफ सेकंड, 1 एंड 1/5 ऑफ थर्ड। अच्छा, तो सबसे पहले कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, फाइंड द 3 लार्जेस्ट कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, ठीक है। अगर मान लो 1 है तो 1 के बाद क्या आएगा 2, 2 के बाद क्या आएगा 3, तो ये तीनों क्या हो गया कंसेक्यूटिव। अगर 1 के बाद हम 4 ले लेंगे फिर 7 ले लेंगे तो 1 के बाद 4 नहीं आता है, 1 के बाद 2 आता है, लेकिन ये तीनों नंबर तो हाँ डेफिनेटली नंबर है, बट ये कंसेक्यूटिव नहीं कहलाएंगे, ये कंसेक्यूटिव कहलाएंगे, ठीक है। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार नंबर, 4 के बाद 4 5 6 7 8 9, तो ये सब क्या होते हैं कंसेक्यूटिव। तो हमसे यहाँ पे फाइंड 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर सच दैट द इतना इतना, देखो हमको नंबर भी तो नहीं बताया, तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या कर लेंगे, द लेट द लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। अगर पहला x है तो सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर क्या हो जाएगा कंसेक्यूटिव होने के लिए x प्लस 1। समझ में आया? थर्ड नंबर क्या हो जाएगा मेरा x प्लस 2। मिल गया हमको तीनों कंसेक्यूटिव नंबर। ओके, सच दैट द सम ऑफ 1/3 ऑफ द फर्स्ट, ठीक है, 1/3 ऑफ द फर्स्ट यानी कि 1/3 ऑफ x, ठीक है, प्लस सम मतलब प्लस होता है तो यहाँ पे हम लोग प्लस कर दिए, ठीक है। 1/4 ऑफ सेकंड यानी कि 1/4 ऑफ सेकंड, सेकंड क्या है मेरा x प्लस 1 है, ओके, प्लस 1/2, अच्छा 1/4 ऑफ सेकंड एंड 1/5 ऑफ थर्ड, 1/5 ऑफ थर्ड, थर्ड क्या है मेरा x प्लस 2 इज एट मोस्ट, मतलब ज्यादा से ज्यादा 25 हो सकता है। एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, 25 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो यानी कि 25 मेरा बैरियर है, 25 से छोटा हो सकता है लेकिन 25 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा x/5 प्लस x प्लस 1/4 प्लस x प्लस 2/5 एंड एट मोस्ट 25। समझ में आया? अब क्या करोगे, इसको आप खुद से सॉल्व करोगे और इसका आंसर कमेंट में डालोगे, ठीक है। आई होप ये चैप्टर आपको मज़ा आया होगा। दैट्स इट फॉर टुडे, और इन्जॉय करो, ठीक है। अच्छा एक चीज़ तो बोलना भूल गया मैं यार, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग या गुड नाइट जब भी आप देख रहे हो, ठीक है। मेरे यहाँ तो अभी कितना बज रहा है, 4:30 बज रहा है शाम का, सो मेरे हिसाब से गुड इवनिंग। बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर।